Hello guys, today's lecture is about oral pathology. In the previous lectures, we have just taught you how to write notes on odontogenic cyst. I hope both the cyst, odontogenic keratocyst cyst as well as dentigerous cyst is clear from your point of view. Just mugging up will not help you. You have to incorporate all this knowledge in your day-to-day life. For example, if you think that a patient comes to you of odontogenic keratocyst, what features will be there that makes you identify this is that you must know. Similarly, dentigerous cyst. So how will you differentiate the most important features which are in a disease or disorder? You have to enumerate them, and after that, you can come to clear-cut diagnosis. We are AI Medical Dental Academy, providing you free education for all the dental courses for its NEET MDS, all BDS years. If you think that you are unable to pass exam, we will help you to pass exam by our guidance. We will help you for passing in practical also. For any competitive exams related to dental or for any upcoming interviews, even for dental PhD after MDS, we provide coaching. So you can refer us or you can come to our coaching center via online mode only. We have provided a YouTube platform through which you can get all these videos. So we'll not waste our time. We'll start today's lecture. It's about odontogenic cyst. I hope both the cyst, odontogenic keratocyst as well as dentigerous cyst is clear from your point. So we will discuss in today's lecture only a few points, but the thing is what will be covered in OP, that is important. So this is a short index for you. We will not go through the index. You can go through after when we send you PDF. First question for today is, our topic for today is disturbances of development and growth during development of oral cavity, mucosa, tongue, palate, teeth. Some disturbances will be there in the body. So what happens due to these disturbances? First thing is microdontia. ठीक है? Microdontia means, see, normal teeth will be somewhat of size. ठीक है? Now what happens in microdontia? Size will be small. So the first topic is regarding size of teeth. Okay, smaller teeth. Okay, you can also write the definition. Teeth which are smaller are called microdontia. Okay, now three types. First is true generalized. सही में बाकी जो दांत है वो छोटे हैं. ठीक है, रियली. दूसरा क्या है? रिलेटिवली जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया. उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पैलेट ज्यादा बड़ा हो और उसमें थोड़ा छोटे छोटे दांत हो. तो पैलेट ज्यादा बड़ा है इसलिए हमको दांत छोटे लग रहे हैं, वो बोलते हैं रिलेटिव जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया. ठीक है, और माइक्रोडोंशिया इन्वॉल्विंग सिंगल टूथ. कोई दांत ऐसा होता है जो डेवलपमेंट के टाइम डिस्टर्ब होता है उसके बर्ड्स, और वो अकेला दांत छोटा होता है. तो आप जब भी एग्जाम में लिखो ना, तो ऐसे लिखने से अच्छा है आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे माइक्रोडोंशिया लिखना है, उसके तीन टाइप कर देना है. ठीक है, ट्रू जनरलाइज्ड. उससे क्या होगा, ये माइक्रोडोंशिया आपको 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका टाइम बचेगा, आपका जो वर्डिंग्स है वो कम हो जाएंगे. ठीक है, फिर आता है रिलेटिवली जनरलाइज्ड और यहाँ आता है सिंगल टूथ वाला. तो ऐसे आपको वर्ड्स बचाने हैं और आपके नोट्स में लिखना है. ठीक है, ट्रू मैंने समझा दिया. कब होता है? जब वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड होती है, ठीक है, उसमें से जो हार्मोन निकलता है ग्रोथ का, वो दिक्कत वाला है, डिफिशिएंट है. इसलिए क्या होता है, पेशेंट की हाइट नहीं बढ़ती है. हम जो देखते हैं ना जोकर वो सब सर्कस में, वो सब इससे पीड़ित होते हैं. तो उसमें चांस है कि टीथ छोटे रह जाए, उसको बोलते हैं ट्रू जनरलाइज्ड. रिलेटिवली जनरलाइज्ड मतलब बॉडी का कोई जो स्ट्रक्चर है, पैलेट है, गम्स है, जिंजाइवा है, वो इतने ज्यादा है कि दांत उसमें दिख नहीं रहे हैं. हमको लगेगा कि दांत छोटे हैं लेकिन रिलेटिवली कुछ और इंक्रीज हो गया है साइज में. ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली. और सिंगल दांत में कभी कभार मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर
और थर्ड मोलर छोटे छोटे रह जाते हैं और लेटरल इंसाइजर जो है वो बैक शेप बन जाता है। ठीक है, तो ये माइक्रोडोन्शिया आपको 5 मार्क्स में काम आएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि हम फिर से वो रिपीट कर लेंगे फिर। ठीक है, अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए व्हाट्सएप करके या कमेंट करके, वरना हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफिक टर्म। तो ज्योग्राफिक टर्म का मतलब क्या है कि कोई भी टंग का डिसऑर्डर ऐसा है जो उस पर आपको लाइंस दिखेगी, अनयूजुअल लाइंस। आज यहाँ है तो कल वहां पे होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि ज्योग्राफिक टर्म किसको बोलते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो जो टंग होगी, आप ऐसे सोचो कि ये टंग है, उस पर कुछ रैशेस होंगे, लाइंस होगी, तो यहाँ होगा, फिर वो अलग अलग जगह पर घूमता रहेगा, इसलिए उसको नाम दिया है ज्योग्राफिक टंग। ठीक है, दूसरा नाम है बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस। ठीक है, तो वो क्या है, तो बोलते हैं कि वो मल्टीफोकल है, पैची है और इरेगुलर एरिया है। कोई लाइंस उसकी डिसाइड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। टंग के ऊपर कुछ एरियाज बन जाएंगे ऐसे जो इरेगुलर है, और वो डीपेपिलेशन, टंग पर सारे जो पेपिला है, फिलीफॉर्म पेपिला है, फंगीफॉर्म पेपिला है, वो सब क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा, और वो कभी कभार लाइन इरेगुलर एरियाज पर स्प्रेड होती है। तो वो लाइंस कभी कभार अपना एरियाज चेंज कर देती है, अपना शेप चेंज करती है, इसलिए उसके सब नाम दिया है ज्योग्राफिक टर्म। फिर वेंडरिंग रैश भी नाम है उसका, यहाँ पे दिया नहीं है। वेंडरिंग रैश मतलब क्या है कि घूमता रहता है, जो लोग घूमते रहते हैं ना, उसको इंग्लिश में वेंडरिंग बोलते हैं। तो वेंडरिंग रैश, ज्योग्राफिक टर्म और बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस। ठीक है, वो क्यों होता है, डीपेपिलेशन ऑफ टंग के कारण होता है। वो इरेगुलर एरिया है, उसका कोई फ्रीक्वेंट या कोई कॉमन साइज या लोकेशन नहीं है। और रिमिशन, वो बार बार होता है और चला जाता है, उसका मतलब ये हुआ। अब क्लिनिकल फीचर्स, तो देखिए, अब ओरल पैथोलॉजी में थोड़े आपको एक लॉजिक होना पड़ेगा लिखने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि आपको मैं कोई बोलूं कि भाई टीबी का डिसऑर्डर है, ट्यूबरकुलोसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएगा, तो आप बहुत सारे फीचर्स ऐसे ही कि आप ऐसे ही लिख दोगे, आपको अगर पता नहीं होगा तो भी। जैसे कि बॉडी एक है, फीवर है, फिर कफ है, फिर थक जाता है पेशेंट, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो जितना मैंने अभी क्लिनिकल फीचर्स बोला, वो भले बुक में है कि नहीं, आप लिख सकते हो ऐसे। ज्योग्राफिक टंग का जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले तो आपको पॉइंट बना देना है कि पहले एज किस में वो देखा जाता है। यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, यहाँ चिल्ड्रन भी लिखा है और एडल्ट भी लिखा है। ठीक है, तो आपको लिखना है एज, पहला पॉइंट है हमारा एज का। ठीक है, ये जो है ना, ये पहला पॉइंट है हमारा एज का। आप जब इंडेक्स बनाओगे आपकी नोट्स में, तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो पहला आता है एज। फिर ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, ज्योग्राफिक टर्म क्लिनिकली प्रेजेंट्स, ये जो बॉक्स में है वो आपको अपनी नोट्स में नहीं लिखना है, सीधा लिखना है कि वो कैसा लीजन है, दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, उसमें आएगा मल्टीपल इरेगुलर वेल डिमार्केटेड पैची एरिथमेटस एरिया। एरिथमेटिस मतलब रेडिश एरिया। ठीक है, वहां थोड़ा ब्लड वेसल्स का फ्लो ज्यादा होगा तो रेडनेस दिखेगी। और कहाँ पे होगा, तो डॉर्सम ऑफ टंग, टंग की जो ऊपर की सरफेस है जो हमको दिखती है, वो डॉर्सम है, नीचे की वेंट्रल है। और वो क्यों दिखता है, तो डिस्क्वेमेशन ऑफ फिलीफॉर्म पेपिला। तो ये सेंटेंस है ना, वो बार बार रिपीट होगा। अभी देखो, पहले भी हमने डेफिनेशन में यही लिखा,
यहाँ भी आपको वही लिखना है जब रीजन को डिस्क्राइब करो तब। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, कभी कभार फिलीफॉर्म पेपिला अगर नहीं होते, ठीक है, तो फंगीफॉर्म पेपिला भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो कैसे दिखेंगे, रेड डॉट्स की तरह दिखेंगे। तो आपको ऐसे शॉर्ट में लिखना है। क्या लिखना है? एब्सेंट फिलीफॉर्म पेपिला या मिसिंग फिलीफॉर्म पेपिला, उससे फंगल फंगीफॉर्म पेपिला इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा पॉइंट आपको बना देना है। ठीक है, तो आपकी नोट्स में ऐसे शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना है, सेंटेंस में मत लिखना, क्योंकि ये तो बहुत टाइम वेस्टिंग है और इतना ज्यादा वो मार्क मिलेगा नहीं आपको। ठीक है। फिर आता है जोग्राफिक टर्म। तो जोग्राफिक टर्म क्या है? उसका कंडीशन, वो कैसा है, सिम्टम्स है कि नहीं। तो वो पेनलेस है और वो एसिम्टोमेटिक कंडीशन है। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि ये कोई प्रॉब्लम वाला नहीं, पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं होगा। आप समझाओगे तो कभी कभार पेशेंट ये भी बोलेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है। तो ये आपको पॉइंट में आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ आएगा एज, ये आएगा लीजन, तीसरा आएगा फंगीफॉर्म पेपिला भी इन्वॉल्व है, फोर्थ आएगा पेनलेस है, फिर एसिम्टोमेटिक कंडीशन है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स होते नहीं है, लेकिन कभी कभार इन सिवियर केसेस इट प्रोड्यूसेस सोरनेस और बर्निंग सेंसेशंस। पेशेंट बोलेगा कि मुझे टंग पर तीखा लग रहा है, खाने के टाइम बर्न हो रहा है, ऐसा मुझे हो रहा है। ठीक है। फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि कोई लीजन जो होता है पुराना वो चला जाता है, नया बन जाता है, इसलिए जो लाइंस है ना वो फिर से ड्रॉ ड्रॉ करा, ऐसे अलग अलग टाइप दिखेगी। ठीक है। बेंडरिंग रैश में क्या होता है, जोग्राफिक टर्म में लाइंस बदलती रहेगी, इरेगुलर एरियाज होते रहेंगे। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में इतना लिखना पड़ेगा आपको। फिर आता है हिस्टोपैथ। हिस्टोपैथ में क्या आएगा, आपको पॉसिबल हो तो डायग्राम ड्रॉ करना है, ना करो तो भी कोई बात नहीं। तो डायग्राम कुछ भी आप जो लिखा है ना वो भी आप लेबलिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए, फिर यहाँ थोड़ा डार्क कर दीजिए, फिर बता दीजिए कि हाइपर पैराकेराटिनाइज्ड है। ठीक है। फिर फिलीफॉर्म एब्सेंट है तो आप नीचे लिखो कि नो फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है। और ये कॉमन चीज है, ये जो चीज है ना यहाँ पे दिख रही है, इंफ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू, वो कॉमन है, आप कोई भी हिस्टोपैथ में वो लिख सकते हो। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या कुछ होगा ना वहां पे ये इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो कभी कभार आपको ये सोचना है कि जो कॉमन चीज है वो तो आपको लिखनी आनी होगी। आपको अभी मैं क्वेश्चन दूं कि पायोजेनिक ग्रेनुलोमा का क्वेश्चन लिखिए फॉर एग्जांपल, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, तो उसमें क्या करना है, उसको आपको जितना भी दो तीन सेंटेंस भले पता है लेकिन आपको फुल क्वेश्चन बनाना है। डेफिनेशन लिखोगे कि इट इज ए ग्रेनुलोमा विच इज फाउंड मोस्ट कॉमनली इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। फिर इटियोलॉजी, तो लिखोगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम उसके कारण। फिर क्लिनिकल फीचर्स, तो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा होगा तो एक ट्यूमर टाइप होगा ग्रोथ गम्स में, तो आपको लिखना है पेन होगा, रेडनेस होगी, गम का स्वॉलन होगा, फिर पेशेंट को खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, फिर सलाइवा का दिक्कत हो जाएगा, टेस्ट में दिक्कत। तो ऑल दिस पॉइंट्स आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर आंसर। अभी तो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, अभी आपको पता भी नहीं था, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि क्या होगा, सारा जो लास्ट में आप देखोगे ना तो सब मिक्स हो गया होगा। जब मिक्स हो जाएगा फिर आप सोचोगे कि क्या आता था क्या नहीं, उसमें आप लिख नहीं पाओगे। तो ये एग्जाम ऐसी है कि आपकी एक कसौटी है कि आप कितना लिख सकते हो, झूठ या सच। आप जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना अच्छा मार्क मिलेगा और फेल नहीं होंगे। ठीक है। तो ओरल पैथोलॉजी में फेल नहीं होना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डायग्राम हो वो आप अच्छी तरह से बनाइए। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे मेरे जो एक ही पेज पर बड़ा डायग्राम बनाते थे, अच्छी तरह से लेबलिंग करते थे, तो उसके पेज भी बढ़ते हैं
जो एग्जामिनर होता है वो डायग्राम देखकर ही खुश हो जाता है, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन जो लिखने की बात है वो भी मैंने जैसे बताया ना कि आपको कॉमन चीज लिखने की अभी आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है जेरोस्टोमिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई एग्जाम ऐसी नहीं ओपी या ओएमआरडी की जिसमें जेरोस्टोमिया या जोग्रेन सिंड्रोम नहीं पूछा गया हो। ठीक है, और इसका तीसरा भाई है ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस। ठीक है, लेकिन अभी तो हम खाली जेरोस्टोमिया ही करवाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, खाली वो मुझे बताइए। तो व्हाट इज जेरोस्टोमिया? सोचो कि आपका सलाइवा जो है मुंह में वो कम हो जाए, सलाइवरी ग्लैंड फंक्शन नहीं देता है ठीक से, या कोई दिक्कत है, तो क्या करोगे आप? आपको ज्यादा तरस लगेगी, आप जितना भी पानी पियो वो मुंह सूखा ही सूखा रह जाएगा। एंड यू विल थिंक दैट इट इज समवट प्रॉब्लम इन swallowing, in taste, in speech. All this will related to poor oral hygiene, and you will be having constant thirst. You will think that I want to drink water. तो व्हाट इज दिस जेरोस्टोमिया? सलाइवरी जो कंटेंट होता है, क्वालिटी और कंटेंट, वो कम हो जाता है और माउथ ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं हम जेरोस्टोमिया, उसका दूसरा नाम है ड्राई माउथ। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या आएगा? ड्राई माउथ ड्यू टू डिक्रीज्ड सलाइवरी सेक्रेशन, बस यही उसका डेफिनेशन है। फिर आता है क्या क्या दिक्कत आती है। तो अभी जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अगर पानी ना मिले 5-6 कलाक तक, तो आपको क्या क्या आएगी? तो सारी जो सिस्टम है, डाइटरी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्पीच, टेस्ट, वो सब पर दिक्कत आएगा। सलाइवा जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? कैरीज को अटकाने में, कैरीज को रोकने में। ठीक है, वो टूथ सरफेस को बचाता है कैरीज से। तो अगर सलाइवा ही कम हुआ तो क्या होगा? डेंटल कैरीज के केस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये रटने की चीज नहीं है। सलाइवा कम है तो क्या होगा? डाइट में दिक्कत, न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम, स्पीच में प्रॉब्लम, टेस्ट में प्रॉब्लम, और डेंटल कैरीज बढ़ जाएगी, यानी कि ओरल कैविटी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। फिर आता है इटियोलॉजी। ठीक है, तो जेरोस्टोमिया वाले जो पेशेंट है ना, उसमें हम डेंचर भी नहीं दे सकते, क्योंकि सलाइवा जो होगा तभी जाके हम रिटेंशन ले सकते हैं पेशेंट के डेंचर में। ठीक है, अब जेरोस्टोमिया के कॉजेस क्या है? तो वो दो कॉज है, टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, तो टेम्पररी की बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे मत लिखना लाइन बाय लाइन, जेरोस्टोमिया लिख देना बड़ा वाला। आज थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ ना, तो हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होंगे, हमारा पैड थोड़ी साइड में पड़ा है। जेरोस्टोमिया के दो कॉजेस, टेम्पररी और परमानेंट। तो इसका एक टेबल ही बना देना है। फिर टेम्पररी के अंदर लिखना है आपको साइकोलॉजिकल आएगा। ठीक है, एंजाइटी और डिप्रेशन। फिर डक्ट के अंदर कैलकुलस, हम बोलते हैं ना कि किडनी के वो, किडनी में यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन आ जाता है, ऐसा कैलकुलाई आ जाएगा कोई डक्ट होगी ना सलाइवरी ग्लैंड की, उसमें। तो उससे जो सलाइवा प्रोड्यूस होना चाहिए वो नॉर्मल प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगा, डक्ट में ब्लॉकेज है इसलिए। तो क्या होगा? वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, वो ठीक से सलाइवा सेक्रेट नहीं कर पाएगा, तो भी ड्राई माउथ हो सकता है। ठीक है, तो जेरोस्टोमिया का टेम्पररी कॉज, उसमें साइकोलॉजिकल, फिर डक्ट में के अंदर कैलकुलाई। ठीक है, फिर तीसरा आता है साइलोडिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड। और चौथा आता है ड्रग थेरेपी, कोई आप ड्रग ले रहे हो कि जो सलाइवा के सेक्रेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ड्रग है?
वो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर्स और हिस्टामाइन्स। ये जितने भी ड्रग्स ले रहे हैं उससे आपको कम हो जाएगा। क्या कम होगा? आपकी सलाइवरी सेक्रेशन। ठीक है। फिर साइरोडिनाइटिस, जब कोई दांत का जो सलाइवरी ग्लैंड का सोर्स, सलाइवा का सोर्स है सलाइवरी ग्लैंड, उसमें इन्फ्लेमेशन है तो वो ठीक से सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये बताया हमने टेम्पररी। क्या है? साइकोलॉजिकल, डक्ट कैल्कुलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और ड्रग थेरेपी। तो आपको एग्जाम में इस टाइप में लिखना है। ठीक है। आपको एक अच्छा टेबल बना देना है, ऐसे चार्ट में बना देना है, टेम्पररी कॉजेस और परमानेंट कॉजेस। अब परमानेंट में क्या क्या आएगा? सलाइवरी ग्लैंड ही दिक्कत है। ठीक है। वो ठीक से बनी नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगी, या सलाइवरी ग्लैंड ही एब्सेंट है। फिर जोग्रेन सिंड्रोम, बॉडी के अंदर जोग्रेन सिंड्रोम है तो उसके साथ ही क्या होगा? माउथ भी ड्राई होगा, ड्राई आइज भी होगी और रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी होगा। तो ये परमानेंट कॉज है, वो आप सुधार नहीं सकते हो। टेम्पररी में क्या होता है? डक्ट की कैल्कुलाई है और आपने डक्ट की कैल्कुलाई निकाल दी तो ठीक से सलाइवा सेक्रेशन चालू हो जाएगा, लेकिन इस केस में जोग्रेन सिंड्रोम में नहीं होगा। फिर रेडियोथेरेपी, तो मैंने आपको बताया था इसका दूसरा भाई है ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। ठीक है। जब भी कोई रेडिएशन लेता है पेशेंट, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो टिश्यूज होती है उसमें बहुत सारा बदलाव आता है। तो रेडिएशन से कभी कभार सलाइवरी ग्लैंड में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसमें अगर प्रॉब्लम आया तो वो सलाइवा सेक्रेशन कम हो जाएगा और उससे दिक्कत होगी। ORN क्या है? उसका फुल फॉर्म है ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं ना, उसमें रेडिएशन देते हैं। तो रेडिएशन से क्या होता है? तीन चीज होती है। एक तो हाइपोसेलुलैरिटी, हाइपो का मतलब कम, मतलब कम टाइप के सेल्स रहेंगे वो टिश्यू में। ठीक है। फिर आता है दूसरा, क्या आता है? हाइपोवास्कुलैरिटी। ठीक है। इसका मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स वहां सप्लाई कर रही है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी एरिया की। ठीक है। तो इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, वो टिश्यू अपने आप नेक्रोसिस की तरफ मुड़ जाएगी। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। ठीक है। पहला है हाइपोसेलुलैरिटी, फिर हाइपोवास्कुलैरिटी। ठीक है। तो ये ऑस्टियो नेक्रोसिस के साथ ही वो जेरोस्टोमिया जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स, तो मैंने बताया आपको कि सोचो कि सलाइवा आपके मुंह में नहीं है, आपको खाने में दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी, टेस्ट में दिक्कत, तो ये सब आप लिख सकते हो। ये कॉमन ही है। देखो, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा स्वेलिंग के टाइम, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। फिर म्यूकोजा नहीं होगा तो जो हमारा गम्स होगा वो खराब दिखेगा, ड्राई दिखेगा, एट्रोफिक दिखेगा, उसमें रेडनेस नहीं दिखेगी, पेल और ट्रांसलूसेंट दिखेगा। फिर सोरनेस भी होगा, बर्निंग और पेन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगा। ये उसके फीचर्स है। तो अभी ये चीज आपको रटने की नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया, पेन, फिर कलर चेंज, फिर टेस्ट में दिक्कत, having problem in deglutition, having problem in swallowing, having problem in speech, color, atrophic, वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है। अब जेरोस्टोमिया की ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट ये है कि कुछ च्युइंग गम्स आती है जो सलाइवा को सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। तो आपको शुगर फ्री च्युइंग गम्स पेशेंट को आप एडवाइस दे सकते हो जिससे सलाइवा बढ़ जाए। ठीक है। तो ट्रीटमेंट तो आप ऐसे सोचो कि जो टेम्पररी कोर्स है उसका ही ट्रीटमेंट हो सकता है, परमानेंट का तो होगा ही नहीं। परमानेंट में तो थोड़ा दिक्कत वाला ट्रीटमेंट होगा, उसमें प्रोग्नोसिस या उसमें ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है। जेरोस्टोमिया की खाली हम च्युइंग गम दे सकते हैं
ताकि पेशेंट को लगे कि थोड़ा थोड़ा सलाइवा मुंह में है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, हम फिर से वो टॉपिक समझाते हैं। ये सब 5 मार्क्स में आ सकते हैं, 7 मार्क्स में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेसरेशन। तो डाइलेसरेशन का मतलब ये है कि जो रूट है वो बेंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि कर्व इन द रूट। डाइलेसरेशन का डेफिनेशन तो आपको ये नहीं लिखना है, खाली डेफिनेशन लिख देनी है। लिखना है कि एन एंगुलेशन और ए शार्प बेंड और ए कर्व इन द रूट एंड द क्राउन। ठीक है, जो कर्वेचर होगा रूट एंड क्राउन ऑफ फॉर्म्ड टूथ, उसको बोलते हैं हम डाइलेसरेशन। ठीक है, अब वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो कैल्सिफाइड पोर्शन हो जाता है, सोचो कि दांत को पूरा बनना है तो पहले तो थोड़ा इरप्ट हुआ होगा, इतना, ये सब अंदर डेवलपिंग स्टेज है। तो जो कैल्सिफाइड पोर्शन है पार्शली फॉर्म्ड क्राउन का, उसमें कभी कभार ट्रॉमा आ सकता है, कोई चोट लगी होगी, तो क्या होगा, ये टूथ जो है वो थोड़ा बेंड हो जाएगा। तो ये जो कर्वेचर है रूट में या क्राउन में, उसको बोलते हैं हम डाइलेसरेशन। ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम जो कैल्सिफाइड पोर्शन होगा, ठीक है, किसका, पार्शली फॉर्म्ड टूथ का, उसमें मैकेनिकल ट्रॉमा होगा और उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कैल्सिफाइड पोर्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको समझाया है ना, वो आपको पैराग्राफ में समझाया है। इसको आप कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ लिखोगे डायलेसरेशन, कैसे कोई क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, तो उसकी डेफिनेशन पहले। ठीक है, डेफिनेशन में क्या आएगा, डेफिनेशन में ये आएगा, बेंड और कर्व और एंगुलेशन इन क्राउन और रूट ऑफ ए टीथ, वो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब क्या आता है डेफिनेशन के बाद, उसमें आता है इटियोलॉजी। तो आपको लिखना है कि मैकेनिकल ट्रॉमा होता है, ठीक है, किसका, कैल्सिफाइड पोर्शन का। फिर वो कैल्सिफाइड पोर्शन है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ, आज मैं थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर नहीं होगा, हमने वो राइटर है थोड़ा अलग जगह रख दिया इसलिए दिक्कत है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कहीं आपको पैराग्राफ नहीं दिख रहा है, इसमें आपको एक लाइन जो बीच में है ना सप्लीमेंट्री की, वो भी आप खाली रख सकते हो, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब आता है डायलेसरेशन का ये डेफिनेशन यहाँ से, फिर इटियोलॉजी, उसका कारण क्या है, फिर साइट, ये लिखना है साइट। तो ये लिखना है कि लेंथ ऑफ द रूट पर हो सकता है,
सर्वाइकल पोर्शन पर भी हो। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वही लिखना है आपको, ज्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और कभी कभार मिडवे अलोंग द रूट हो सकता है और एपेक्स ऑफ द रूट पर। ठीक है, वो सब डिपेंड किस पर करता है, एक तो रूट कितना बना है, और इंजरी जब होती है तब रूट कितना बना है, वो चीज। तो ऐसे आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब डायलेसरेशन के साथ हमको क्या लेना देना है। तो अगर आपने एक्सरे लिया और देखा कि ये बैंड है रूट में, तो हमको दिक्कत होगी एक्सट्रैक्शन में, तो आपको पेशेंट को ये बताना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन से पहले एक्सरे लेना जरूरी होता है, हम तो लेते हैं। ओपीजी अगर सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डायलेसरेशन वैसे 5 मार्क्स में आ सकता है, थोड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, अब आज के लिए लास्ट टॉपिक वो है डेंस इन्वेजिनेट और डेंस इन डेंट। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो ऐसी चीज है कि सपोज ये ऊपर का कैनाइन है, टूथ तो बन गया है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे ना तो उसके अंदर थोड़ा खड्डा होगा क्राउन के अंदर। ठीक है, तो ये डेंस इन्वेजिनेटस मतलब डेंस दांत के अंदर एक छोटा दांत या थोड़ा खड्डा जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब डेफिनेशन, तो ये नहीं लिखना है डेंस डेंटे और डेंस इन्वेजिनेटस इज, यहां से चालू करना है। डीप सरफेस इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन मतलब थोड़ा खड्डा हो जाना, ऑफ क्राउन और रूट विच इज लाइंड बाय इनेबल। जब वो इन्वेजिनेशन हो जाएगा तब वो रूट पर भी होगा, क्राउन पर भी होगा, और वो इनेमल से लाइंड होगा। ठीक है, अब वो क्या है, तो डेवलपमेंटल वेरिएशन है। ठीक है, वो क्यों होता है, तो टूथ का क्राउन जब बनता है, ठीक है, और उसका कैल्सिफिकेशन होने से पहले, बिफोर द कैल्सिफिकेशन देयर इज सम इन्वेजिनेशन, दांत के अंदर खड्डा हो जाता है, तब जाके वो डेंस इन्वेजिनेटस और डेंस इंडेंटे बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ी है ना, थोड़ा पैराग्राफ में आपको ज्यादा समझाया है। आपको यही लिखना है कि डेंस इन्वेजिनेटस या डेंस इंडेंटे, उसका डेफिनेशन क्या हुआ, इन्वेजिनेटस इन द टूथ क्राउन और रूट, वो डेफिनेशन। फिर इटियोलॉजी, कुछ इन्वेजिनेशन होगा, ठीक है, किसके कारण, डेवलपमेंटल वेरिएशन के कारण। टूथ सरफेस के अगर टूथ सरफेस के अंदर इन्वेजिनेशन हो जाएगा और कैल्सिफिकेशन तब हुआ नहीं होगा, कैल्सिफिकेशन बाकी होगा। अब उसके इटियोलॉजी कौन कौन से है, तो लोकलाइज्ड एक्सटर्नल प्रेशर, पेशेंट को कोई चोट लगी होगी, ठीक है, या पेशेंट का मस्कुलेचर इतना ज्यादा है कि वो ज्यादा फोर्सेस डालते हैं उस पर। फिर फोकल ग्रोथ, दांत के अंदर कभी कभार क्या होता है, सिग्नल गलत आ जाता है तो दांत के अंदर ही एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो आपको लगेगा कि एक दांत के अंदर एक छोटा दांत भी है। फिर रिटार्डेशन एंड फोकल ग्रोथ सिमुलेशन, स्टिमुलेशन इन द सर्टेन एरियाज ऑफ टूथ बर्ड। तो ये जितने भी कारण दिए हैं ना, वो ऐसे बोल रहे हैं कि टूथ बर्ड के अंदर कोई गलत सिग्नल मिल जाना, वो ग्रोथ का स्टिमुलेशन हो जाना, रिटार्डेशन भी हो सकता है, वो सब फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आता है कौन कौन से दांत इन्वॉल्व है, तो परमानेंट मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स, आपको तो पता ही होगा क्वाड्रेंट में, तो 2 2 आएगा। हम लोग ऐसे याद रखते थे कि डेंस इन्वेजिनेटस ऐसे होता है। ठीक है, दो टाइप में, क्राउन पोर्शन में होगा तो कोरोनल, रेडिकुलर में होगा तो रेडिकुलर, रूट में होगा तो रेडिकुलर। तो आपको ये भी ऐसे ही लिखना है, टाइप्स। एक कोरोनल, रेडिकुलर। फिर आपको लिखना है क्या होगा, ये साइट, तो ये क्राउन में दिखेगा, ये रूट में दिखेगा। फिर
कौन कौन से दांत अफेक्टेड है, ठीक है। तो लेटरल इंसाइजर्स ज्यादा है, सेंट्रल इंसाइजर्स है, ठीक है, प्रीमोलर्स भी है, कैनाइन्स है और मोलर्स। ये सीक्वेंस में ऐसे होगा, ठीक है। फिर मैक्सिलरी टीथ में ये पाया जाता है, कौन सा, कोरोनल वाला जो डेंस इन्वेजिनेटस है वो मैक्सिलरी टीथ में ज्यादातर पाएगा। तो क्या क्या होता है उसमें, तो स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ सिंगुलम, दांत की जो लिंगुअल सरफेस आती है अपर वाले दांत की, उस एरिया को सिंगुलम बोलते हैं। तो वहां पे स्लाइट इन्वेजिनेटस हो जाएगा या नया दांत होगा ना, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। और कभी कभार ऐसे लगेगा कि वो एपेक्स तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। फिर आता है कोरोनल डेंस इन्वेजिनेटस, जो क्राउन का जो इन्वेजिनेशन है, जो सिंगुलम पर आपको दिख रहा है, वो तीन टाइप के हैं। एक तो क्राउन के तक लिमिटेड है, दूसरा ये है कि सीजे से बिलो है, नीचे तक जाता है, और तीसरा ये है कि वो नीचे तक जाएगा, रेडिकुलर एरिया तक जाएगा और पल्प में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, खाली क्राउन तक है। दूसरा वाला क्या होगा, वो आगे जा सकता है सी जैसे, ठीक है, लेकिन पल्प तक पहुंचा नहीं होगा, पल्प के नजदीक रहेगा। और तीसरा वाला पल्प तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे टाइप्स, ऐसे क्लासिफिकेशन आपको याद कैसे रखोगे, पहला वाला खाली क्राउन में होता है, दूसरा वाला क्राउन से आगे होकर सी जाके क्रॉस कर देता है, पल्प को पहुंचता नहीं, तीसरा वाला पल्प को पहुंच जाता है, इसलिए बोलते हैं टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री, ठीक है। और डेंस इंडेंटेड जो है ना, वो ऐसा नाम क्यों होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि एक दांत के अंदर एक छोटा दांत है, इसलिए हम बोलते हैं डेंस इंडेंटेड, ठीक है। फिर आता है कभी कभार ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, और ये जो टूथ बनता होगा ना, उसको थोड़ा अलग से बनाएगा, टूथ के स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं होने देगा। तो जब ये टूथ कुछ अलग शेप ले लेगा, तब बोलते हैं हम डायलेटेड ओडोंटोम, ठीक है। ये सब नहीं लिखते हो तो भी चलता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, टाइप्स होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उस पर ही उनका फोकस होता है। तो अगर आपने वो टेबल फॉर्मेट में बना दिया है और एग्जाम में लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी एग्जामिनर के पास पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आता है रेडिकुलर में क्या क्या होता है। तो देखिए, पहले तो ये बात है कि ये रेयर है, कभी कभार ही ये होता है। कोरोनल जो डेंस इन्वेजिनेटस है वो मोस्ट कॉमन है, रेडिकुलर का रेयर है, ठीक है। वो क्यों होता है, तो जब रूट बनता है ना, किससे, आर्टविक्स एपिथेलियम रूट शीट, ठीक है, इससे रूट बनता है। तो इसमें क्या होगा, कभी कभार जो इनेमल का स्ट्रिप होगा ना, वो रूट सरफेस पे चला जाएगा। मैं समझाता हूँ आपको, ये टूथ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इनेमल जो होगा ना, यहाँ से वो थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई दांत है, ठीक है, इसलिए आपको लगेगा कि रूट के अंदर डेंस इन डेंटे है, रेडिकुलर डेंस इन्वेजिनेटस है, ठीक है। फिर आता है उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है उसका, तो कुछ नहीं, अगर वो एस्थेटिक में दिक्कत करता है, तब जाके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर दांत इरप्ट हो गया, उसमें थोड़ा खड्डा टाइप है, या दांत के ऊपर दांत जैसी कंडीशन है, तो दांत, दो दांत के बीच में कैरीज हो सकता है, वहां पे फूड एक्यूमुलेशन हो सकता है, वहां पल्प को इंजरी भी हो सकती है लेटर स्टेजेस में। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो दांत को निकाल देना ही अच्छा है,
और अगर निकालते नहीं छोटा वाला दांत को तो आप रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, किसको रिस्टोर करना है? जो दो दांत के बीच में जगह होती है ना, एक बड़ा वाला होता है दांत और उसमें एक छोटा वाला दांत होता है, तो वो दांत और ये बड़े वाले दांत के बीच में आपको रिस्टोरेशन कर सकते हो कैरीज को कम करने के लिए। अगर लार्ज इन्वेजिनेशन हुआ तो क्या होगा? तो ल्यूमेन, किसका कंटेंट ऑफ ल्यूमेन और कैरियस डेंटिन, दांत के अंदर तक वो इन्वेजिनेशन है, तब आपको आरसीटी के टाइप ही करना पड़ेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। या फिर आपको क्या करना है, जो भी खराब चीज है वो निकाल देनी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट है वो एसओएस है, जितनी कंडीशन है उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट देना होता है। और टाइप 3 होगा, उसमें आपको आरसीटी या रूट कैनाल या एंडोडोंटिक थेरेपी करनी ही पड़ेगी। तो हमने जो आगे क्लासिफिकेशन देखा टाइप 1 का, टाइप 2 का, टाइप 3 का, वैसे ही आपको ट्रीटमेंट में भी लिखना है कि टाइप 1 में आपको खाली रिस्टोरेशन करना है, टाइप 2 में आपको बेस देना है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पल्प कैपिंग का ट्रीटमेंट देना है, और टाइप 3 में आरसीटी का ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने जो पढ़ाया वो यहाँ पे हमारा लेक्चर पूरा हो रहा है डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस का। ओरल पैथोलॉजी को हम इजीली आपको पढ़ा देंगे, आपकी जिम्मेदारी है नोट्स बनाने की। और कोई भी क्वेश्चन जो आपने नहीं समझा है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी, कमेंट करके भी बता सकते हो, हम ये टॉपिक फिर से आपको समझा देंगे। आज जो हमने पढ़ा वो ज्यादातर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, कभी कभार जो ज्योग्राफिक टंग है वो 7 मार्क्स में आ सकता है। लेकिन एक बात मत भूलना, कल भी की थी आज भी कर रहा हूँ, 7 मार्क्स होता है तो आप मैक्सिमम 25 मिनट्स लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 20 मिनट ले लेते हो तो बहुत सही है, लेकिन 30 मिनट लिखने का कोई फायदा नहीं। अगर 5 मिनट का क्वेश्चन है तो आपको 18 से 20 मिनट तक लिखना है। ठीक है, बाकी सब वन लाइनर क्या है, 1 मिनट में हो जाते हैं, इस हिसाब से हमने ये हिंदी की है। तो ये कैसे पता चलेगा कि 20 मिनट में पूरा हो रहा है कि नहीं? तो आपको नोट्स लिखनी पड़ेगी, नोट्स में आप इतना शॉर्ट शॉर्ट लिख दोगे तो उस डेटा से एग्जामिनर को ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा और गप्पेबाजी कम होगी, तो आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। क्योंकि थियरी एग्जाम जो है ना वो प्रेजेंटेशन से, कंटेंट से, डायग्राम से ऐसे ही हम पास करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। आपको ओरल पैथोलॉजी हमने इजी बना दिया है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी वेबसाइट का नाम है medicaldentalacademy.com। इस पर सारा स्टफ मिल जाएगा जो आपको कोई भी एग्जाम हो डेंटल की उसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए हेल्पफुल हो सके। तो guys, please like and subscribe our channel. Please share our videos to maximum, guys. And if you are not pressed the bell icon, please press the bell icon for the upcoming notifications. So have a nice time. Bye bye.